Hello, my dear students, all the viewers and subscribers. In last lecture, we had completed two order of reaction. One is the first order reaction, and second one is an zero order reaction. दोनों को बेटा हम शॉर्ट में रिमाइंड कर लेंगे. So first order reaction, those reaction in which rate of reaction depend upon the concentration of one reactant molecule. That reaction is called as first order reaction. तीन बेटा एग्जाम्पल बताया मैंने उसमें. One is for decomposition of hydrogen peroxide. Second one is in decomposition of nitrogen pentoxide. Third one is in decomposition of cyclopropane. Second order of reaction complete करे बेटा हमने zero order reaction. Those reaction in which rate of reaction do not depend upon the concentration of reactant molecule. That reaction is called as zero order reaction. इसमें भी बेटा तीन एग्जाम्पल बताया मैंने आपको. One is decomposition of ammonia. Second one is decomposition of nitrous oxide. And third one is decomposition of phosphine. Okay. So this much we had completed in last period. Now today we are going to learn pseudo first order reaction. Pseudo, P-S-E-U-D-O. Pseudo first order reaction. Pseudo means not real, imaginary, false. जो बेटे रियल नहीं होता है, जो बेटा फॉल्स होता है, जो बेटा झूठा होता है, गलत होता है, उसे बोलते हैं बेटा सीडो. सो सीडो फर्स्ट ऑर्डर मतलब बेटा जो रियल में फर्स्ट ऑर्डर नहीं होती है. So those reaction which is not truly first order, but under some condition it is acts as an first order reaction, is called as pseudo first order reaction. तो बेटा वो रिएक्शन जो बेटा रियल में फर्स्ट ऑर्डर नहीं होती है, जो बेटा रियल में फर्स्ट ऑर्डर नहीं होती है, नॉट ट्रूली फर्स्ट ऑर्डर, बट अंडर सम कंडीशन it is acts as a first order reaction, then that reaction is called as pseudo first order reaction. तो बेटा ऐसी रिएक्शन जो रियल में फर्स्ट ऑर्डर नहीं रहेगी मगर बेटा कुछ कंडीशन में वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का काम करेगी, that reaction is called as pseudo first order reaction. Understood? It is the one definition or meaning of pseudo first order. Now another one, those reaction in which more than one molecule of reactants are involved, but rate of reaction depend upon the concentration of one reactant molecule. That reaction is called as pseudo first order reaction. तो बेटा वो रिएक्शन जिसमें एक से ज्यादा मीन्स 2, 3 etc. So more than one molecule of reactants are involved, but rate of reaction depend upon the concentration of one reactant molecule. That reaction is called as pseudo first order reaction. तो बेटा ऐसी रिएक्शन जो जिसमें बेटा एक से ज्यादा रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं मगर बेटा रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है सिर्फ एक मॉलिक्यूल के कॉन्सेंट्रेशन पे, उस रिएक्शन को बोलेंगे बेटा हम pseudo फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. बेटा दोनों में से कोई भी डेफिनेशन लिखो, मार्क्स पूरे मिलेंगे, मगर दोनों लिखकर बेटा टाइम वेस्ट नहीं करना. So according to one definition, the reaction which is not truly first order but under some condition acts as a first order reaction,
is called as pseudo first order reaction. And second definition is those reaction in which more than one molecule of reactants are involved, but rate of reaction depend upon concentration of one reactant molecule. That reaction is called as pseudo first order reaction. चलिए अब बेटा मैं इसके 3 एग्जाम्पल बताऊंगा आपको. फर्स्ट एग्जाम्पल हाइड्रोलाइसिस ऑफ मिथाइल एसीटेट. हाइड्रोलाइसिस मीन्स रिएक्शन विथ वाटर, या बेटा एडिशन ऑफ वाटर इज कॉल्ड एज हाइड्रोलाइसिस. तो बेटा रिएक्शन वाटर के साथ या बेटे वाटर का एडिशन उसे बोलते हैं हम हाइड्रोलाइसिस. अब बेटा हाइड्रोलाइसिस करना है किसका? मिथाइल एसीटेट का. मिथाइल एसीटेट इट्स फॉर्मूला CH3 C डबल बॉन्ड OO CH3. इट इज मिथाइल एसीटेट. सो व्हेन मिथाइल एसीटेट रिएक्ट विथ वाटर, जब बेटा मिथाइल एसीटेट बेटे रिएक्ट करेगा किसके साथ? वाटर के साथ. अब बेटा ये CH3 C डबल बॉन्ड OO और बेटा वाटर में का H, वाटर में का H, दे कंबाइंस टू फॉर्म CH3 C डबल बॉन्ड OOH. दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एसिटिक एसिड. अब बेटा CH3 फ्रॉम दिस मिथाइल एसीटेट एंड OH फ्रॉम दी वाटर, दे कंबाइंस टू फॉर्म CH3OH. CH3OH मीन्स मिथाइल अल्कोहल. So when methyl acetate undergoes hydrolysis, then it forms acetic acid along with methyl alcohol. Now here water is present in excess quantity. वाटर बेटे प्रेजेंट होता है क्या में बेटा? एक्सेस क्वांटिटी में, ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है बेटा. देयरफॉर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर डू नॉट अफेक्ट ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन. इसलिए बेटे वाटर का कॉन्सेंट्रेशन रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं करता. क्यों नहीं होगा बेटे वाटर के कॉन्सेंट्रेशन का इफेक्ट? क्योंकि बेटा वो एक्सेस क्वांटिटी में प्रेजेंट है. राइट. देयरफॉर फॉर दिस रिएक्शन रेट लॉ इज गिवन एज रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मिथाइल एसीटेट into concentration of H2O 0. अब बेटे यहां पे पावर कितना लेंगे? 0. Why it is taken as 0? Because concentration of water do not affect on the rate of reaction. तो बेटे वाटर का concentration बेटे रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर इफेक्ट नहीं करेगा. ठीक है. चलो प्रोपोर्शनलिटी साइन निकालो. अब बेटे वाटर के ऊपर डिपेंड नहीं है ना, तो आप इसको छोड़ दे सकते हैं. देयरफॉर रेट इज इक्वल टू K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मिथाइल एसीटेट. अब बेटे मैंने यहाँ पे वाटर क्यों नहीं लिया? बिकॉज रेट ऑफ रिएक्शन डू नॉट डिपेंड अपॉन दी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर. वाई इट इज नॉट डिपेंड अपॉन दी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर? बिकॉज वाटर इज प्रेजेंट इन एक्सेस क्वांटिटी. वाटर बेटा एक्सेस क्वांटिटी में है, इसलिए बेटा रेट ऑफ रिएक्शन उसके कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा. इसलिए बेटा उसका पावर लेंगे हम 0. अब आप ही बोलो बेटे रिएक्शन में 2 मॉलिक्यूल है ना, तो बेटा रिएक्शन देखने में सेकेंड ऑर्डर लग रही ना, मगर बेटे काम क्या कर रही वो? फर्स्ट ऑर्डर का. फर्स्ट ऑर्डर ना. हाँ. देयरफॉर सच रिएक्शन इज कॉल्ड सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. अब बेटे 2 मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है ना, मीन्स मोर देन 1, बट रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल. सो सच रिएक्शन इज कॉल्ड सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. अंडरस्टूड? इट इज द वन एग्जाम्पल. नाउ सेकेंड एग्जाम्पल हाइड्रोलाइसिस ऑफ सुक्रोज. अब बेटा सुक्रोज का हाइड्रोलाइसिस करना है. सुक्रोज मीन्स केन शुगर. बेटा केन शुगर को बोलते हैं हम सुक्रोज. कॉमन शुगर, टेबल शुगर. नाउ सुक्रोज इट्स फॉर्मूला C12H22O11. इट इज सुक्रोज. सो व्हेन सुक्रोज अंडरगोज हाइड्रोलाइसिस, जब बेटा सुक्रोज का बेटे क्या होता? हाइड्रोलाइसिस, देन इट फॉर्म
1 molecule of glucose and 1 molecule of fructose. C6H12O6 it is glucose, C6H12O6 it is fructose. तो बेटा सुक्रोज का बेटे हाइड्रोलाइसिस हुआ तो बेटे एक मॉलिक्यूल फॉर्म करता ग्लूकोज का और बेटा एक मॉलिक्यूल फॉर्म करता बेटा फ्रुक्टोज का। ये रिएक्शन बेटा हमने बायोमॉलिक्यूल में पढ़ी हुई है, प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम सुक्रोज, राइट। नाउ हियर वाटर इज प्रेजेंट इन एक्सेस क्वांटिटी, यहां बेटा वाटर प्रेजेंट होता है एक्सेस क्वांटिटी में, देयरफॉर इट्स कॉन्सेंट्रेशन डू नॉट अफेक्ट ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन, इसलिए बेटे वाटर का कॉन्सेंट्रेशन रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं इफेक्ट करेगा बेटे? क्योंकि बेटा उसकी क्वांटिटी क्या है, एक्सेस है। एक मैं सिंपल एग्जांपल देता हूं बेटे, सपोज करो हमारे पास 1 लाख रुपए है, कितने हैं, 1 लाख। अब बेटा हमने उसमें से 1 रुपया खर्च करे, कितना खर्च करे, 1। अब बेटा किसी ने पूछा कितने रुपये बचे, तो हम क्या बोलते हैं, 1 लाख। क्यों बोलते बेटा? क्योंकि जो खर्च हुआ वो क्या है बेटा, निग्लेजिबल है। हम ये नहीं बोलते 99,999 रुपीज आर लेफ्ट, हम बेटा सिंपली क्या बोलते हैं, 1 लाख रुपीज। क्यों बोलते बेटा 1 लाख? क्योंकि बेटा जो खर्च हुआ वो क्या है बेटा, निग्लेजिबल है। सिमिलरली हियर ऑल्सो वाटर इज प्रेजेंट इन एक्सेस क्वांटिटी, देयरफॉर its concentration do not affect on the rate of reaction. Hence rate law is given as a rate directly proportional to concentration of sucrose into concentration of H2O raised to 0. अब बेटा क्यों पावर 0 लिए? Because rate of reaction do not depend upon concentration of water. चलिए therefore proportionality sign निकालो, so rate is equal to K into concentration of sucrose into concentration of H2O raised to 0. अब बेटा वाटर पे डिपेंड नहीं है ना, इसलिए बेटा वाटर को छोड़ दो, सो रेट इज इक्वल टू K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सुक्रोज। अब बेटा मोर देन 1 मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है ना, हाँ, सो इन रिएक्शन मोर देन 1 मॉलिक्यूल ऑफ रिएक्टेंट्स आर इन्वॉल्व, बट रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड अपॉन the concentration of one reactant molecule. Therefore such reaction is called pseudo first order reaction. अब बेटा ये रियल में फर्स्ट ऑर्डर है क्या? नहीं, मगर बेटा काम क्या कर रही है, फर्स्ट ऑर्डर का। सो दोज रिएक्शन विच इज नॉट ट्रूली फर्स्ट ऑर्डर बट अंडर सम कंडीशन इट इज एक्ट एज एन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज कॉल्ड एज pseudo फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये हो गया बेटा 2 एग्जाम्पल, और एक बताता हूं मैं आपको। नाउ थर्ड एग्जांपल दैट इज हाइड्रोलाइसिस ऑफ इथाइल एसीटेट। हाइड्रोलाइसिस ऑफ इथाइल एसीटेट सेम है बेटा जैसा मिथाइल एसीटेट का था। इथाइल एसीटेट CH3C डबल बॉन्ड O C2H5। सो व्हेन इथाइल एसीटेट अंडरगोज हाइड्रोलाइसिस, अब बेटा ये CH3C डबल बॉन्ड O और बेटे वाटर में का H, दे कंबाइंस टू फॉर्म CH3C डबल बॉन्ड OH, इट इज एसिटिक एसिड। अब बेटे इथाइल एसीटेट में का C2H5 और बेटे वाटर में का OH, दे कंबाइंस टुगेदर टू फॉर्म C2H5OH, इट इज इथाइल अल्कोहल, राइट। सो व्हेन इथाइल एसीटेट अंडरगोज हाइड्रोलाइसिस, देन इट फॉर्म्स acetic acid along with ethyl alcohol. Now here water present in excess quantity, therefore its concentration do not affect on the rate of reaction, right? Therefore rate law is given as rate directly proportional to concentration of ethyl acetate into concentration of H2O raised to 0. अब बेटा क्यों 0 लिए? Because its concentration do not affect on the rate of reaction. चलो proportionality sign निकालो, therefore rate is equal to K into concentration of ethyl acetate into concentration of H2O raised to 0, right? अब बेटा वाटर पे डिपेंड नहीं है ना, क्योंकि बेटे उसका concentration 0, therefore rate is equal to K into
कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इथाइल एसीटेट। अब बेटा कितने मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है? 2, मीन्स मोर देन 1, बट रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड अपॉन concentration of one reactant molecule. Therefore, such reaction is called pseudo first order reaction. Okay? Any problem up to here? So it is all about the pseudo first order reaction. तो बेटा 3 ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पढ़ लिए हमने, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन और बेटा pseudo फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, चलिए नाउ वी विल सी मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन। बहुत सिंपल टॉपिक है बेटे, ये सबसे इजी टॉपिक। मॉलिक्यूलरिटी, MOLECULARITY, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन। नाउ मॉलिक्यूलरिटी, इट इज द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट प्रेजेंट इन केमिकल रिएक्शन। बेटा किसी भी केमिकल रिएक्शन में कितने रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल प्रेजेंट है? जैसा बेटा किसी रिएक्शन में एक रिएक्टेंट रहता, किसी में बेटा 2 रिएक्टेंट रहते, किसी में बेटा 3 रिएक्टेंट रहते ना। हाँ, सो सच टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट इन्वॉल्व इन केमिकल रिएक्शन विच कोलाइड टुगेदर टू फॉर्म द प्रोडक्ट इज कॉल्ड एज मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन। तो बेटा किसी भी केमिकल रिएक्शन में कितने रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल प्रेजेंट है जो बेटे कंबाइन होकर, कोलाइड होना मतलब बेटा कंबाइन होना, राइट। तो बेटा किसी भी केमिकल रिएक्शन में कितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ कंबाइन होकर प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे, उसको बोलते बेटा मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन। या बेटा सिंपल वर्ड में बोलना है, सो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट प्रेजेंट इन केमिकल रिएक्शन। थोड़ा केमिकल रिएक्शन में मौजूद टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को बेटा क्या बोलेंगे हम? मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन। अब बेटे मॉलिक्यूलरिटी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन दोनों अपोजिट रहते। अभी जब मैं बताऊंगा ना आपको याद आ जाएगा। Now molecularity, it is a theoretical concept. Molecularity क्या है बेटा? theoretical concept है। आपको एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। खाली बेटा रिएक्शन में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल देखो, उस पे रिएक्शन डिपेंड है या नहीं है उससे कोई लेना देना नहीं। खाली बेटा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑब्जर्व करो, जितने मॉलिक्यूल प्रेजेंट है उतनी उसकी मॉलिक्यूलरिटी। बेटे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट है, मगर बेटा मॉलिक्यूलरिटी क्या है बेटा? थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। सो मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन इज एन थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट। 2 मार्क के लिए बेटा क्वेश्चन पूछता है, डिस्टिंग्विश बिटवीन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन, राइट। तो बेटे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट है, मॉलिक्यूलरिटी बेटा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। Now molecularity of the reaction is always whole number. Molecularity बेटे हमेशा whole number रहती, 1, 2, 3। अगर बेटे एक मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है तो 1, 2 मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है तो 2, 3 मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है तो 3। So molecularity of the reaction is always whole number. It should not be zero or fractional. बेटा मॉलिक्यूलरिटी कभी भी जीरो नहीं होती, कभी भी फ्रैक्शनल नहीं होती, मगर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जीरो भी होता है और फ्रैक्शनल भी होता है। तो बेटा दोनों अपोजिट है ना। हाँ, सो मॉलिक्यूलरिटी इट इज थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इट इज एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट। मॉलिक्यूलरिटी इज ऑलवेज होल नंबर, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज होल नंबर, फ्रैक्शनल और जीरो। But molecularity is always whole number. It should not be zero. It should not be fractional. Right? Now there are the 3 types of molecularity of the reaction. बेटे molecularity के बेटा 3 टाइप है, बहुत इजी है बेटा। यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, बायमोलिकुलर रिएक्शन एंड ट्राइमोलिकुलर रिएक्शन। अब आप ही बोलो मुझे बेटा पढ़ाने की जरूरत है क्या? नहीं, मगर फिर भी हम पढ़ लेंगे।
So unimolecular reaction, those molecule in which one molecule of reactant is involved. बेटा वो रिएक्शन जिसमें बेटा रिएक्टेंट का एक मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होता है. कितने बेटा? एक मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होता है. सो द रिएक्शन इन विच one molecule of reactant is involved, that reaction is called as unimolecular reaction. देखो ये 3 एग्जाम्पल लिखा मैंने. H2O2 undergoes decomposition to form water and oxygen. अब बेटे हाइड्रोजन पेरोक्साइड के कितने मॉलिक्यूल है? 1. दिखाई दे रहा है ना? राइट. सिमिलरली नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड undergoes decomposition to form nitrogen tetroxide and oxygen. अब बेटे यहां भी नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड के कितने मॉलिक्यूल है? 1. सिमिलरली ओजोन O3 undergoes decomposition to form O2 plus O. ओजोन का बेटे डिकम्पोजिशन हो रहा, फॉर्म हो रहा O2 plus O. अब बेटा ये तीनों एग्जाम्पल देखो. In all these 3 examples, how many molecules of reactants are involved? Only one molecule of reactants are involved. Therefore, such reaction is called unimolecular reaction. Right? Shall second one, that is the bimolecular reaction. Those reaction in which 2 molecules of reactants are involved. बेटा वो रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट के 2 मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होते हैं. कितने बेटा? रिएक्टेंट के 2 मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होते हैं. दैट रिएक्शन इज कॉल्ड एज बायमॉलिक्यूलर रिएक्शन. उस रिएक्शन को बोलते बेटा बायमॉलिक्यूलर रिएक्शन. देखो इधर H2 plus Cl2 gives rise to 2HCl. अब बेटा कितने मॉलिक्यूल है? 2. 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन, 1 मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन. सिमिलरली H2 plus I2 gives rise to 2HI. कितने मॉलिक्यूल है बेटा? 2. 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन, 1 मॉलिक्यूल ऑफ आयोडीन. दिखाई दिया ना? सिमिलरली मिथाइल ब्रोमाइड रिएक्ट विथ KOH टू फॉर्म मिथाइल अल्कोहल एंड KBr. कितने मॉलिक्यूल है बेटा? 2. 1 मॉलिक्यूल ऑफ मिथाइल ब्रोमाइड, 1 मॉलिक्यूल ऑफ KOH. सो सच रिएक्शन इन विच 2 molecules of reactants are involved, that reaction is called bimolecular reaction. चले थर्ड वन, ट्राइमोलिक्यूलर रिएक्शन. ट्राई मीन्स 3, लाइक बाय मीन्स 2, यूनि मीन्स 1. तो बेटा यूनि का मतलब होता है 1, बाय का मतलब होता है 2, वैसा बेटे ट्राई का मतलब है 3. सो ट्राइमोलिक्यूलर रिएक्शन, दोज रिएक्शन इन विच 3 molecules ऑफ रिएक्टेंट्स आर इन्वॉल्व. बेटा वो रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट के 3 मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होते हैं. कितने मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होते हैं? 3 molecules of reactants are involved. That reactions are called as trimolecular reaction. So the reaction in which 3 molecules of reactants are involved is called as trimolecular reaction. Right? Example देखो बेटा, acetylene, 1 molecule of acetylene plus 2 molecules of hydrogen. एसिटाइलिन का बेटे 1 मॉलिक्यूल रिएक्ट कर रहा है हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल के साथ टू फॉर्म इथेन. तो बेटा इथेन फॉर्म हो रहा. सिमिलरली नाइट्रोजन, 1 मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट विद 2 molecules ऑफ ऑक्सीजन. नाइट्रोजन का बेटे 1 मॉलिक्यूल रिएक्ट कर रहा ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल के साथ टू फॉर्म 2 molecules ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड. सिमिलरली 1 molecule of carbon react with 2 molecules of hydrogen to form 1 molecule of methane. तो बेटा यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल है एसिटाइलिन का, 1 हाइड्रोजन के 2. यहाँ बेटा 3 मॉलिक्यूल है नाइट्रोजन का, 1 ऑक्सीजन के 2. यहाँ बेटा 3 मॉलिक्यूल है कार्बन का, 1 हाइड्रोजन के 2. सो सच रिएक्शंस आर कॉल्ड ट्राइमोलिक्यूलर रिएक्शन. सो रिएक्शन कंटेनिंग 1 molecule is called as unimolecular reaction. Reaction containing 2 molecules of reactant are called as bimolecular reaction, and reaction containing 3 molecules of reactants are called as trimolecular reaction. So today we will stop here. Tomorrow we will continue.